Uh, Good evening, everyone. I am Mukesh Kumar, Assistant Professor, Dr. K.N. Maipar. Today we are conducting a webinar on the topic coarse dispersion, emulsion. I am feeling glad to share that today we have respected Dr. R.K. Khandal, Sir, ex-Vice Chancellor, UPTU, and Chief Mentor of Dr. K.N. Modi Foundation, and Honorable President Sir, Dr. D.K. Modi Sir, with us today's webinar. We also invited our alumni, Mr. Pankaj Sharma, who has working as an market research associate at Prescient Healthcare, and our 3B Farm second year students, namely Manishka Sharma, Ayushi Sharma, and Sasikesh Shukla. Thanks Pankaj Sharma for joining the webinar. Before starting the webinar, I am inviting respected Dr. Khandal sir to say his blessings to the students. Mukesh sir, Khandal sir will join maybe in some time. Please start. Okay sir. Okay sir. ठीक sir. Uh, Before starting the webinar, I am inviting respected director sir to say his blessings to the students. Dear students, good afternoon to everyone. Today there is a webinar on emulsion, which is an important topic from the examination point of view. And this topic has also got practical applicability also in your future professional career. So all of you are requested to listen the webinar with great uh, cautious and sincerity. Okay, all the best. Mukherjee, you can Yes, continue. sir. With the permission of respected director sir, and I would like to start today's procedure by inviting Manishka Sharma to start their discussion. Good morning to respected President Sir, Director Sir, all my faculty members, respected alumni, seniors and my dear friends. Myself Manishka Sharma from second year from Dr. K.N. Maipur. So today I'm going to start with the topic coarse dispersion. First here the point is, what is coarse dispersion? Coarse dispersion is a heterogeneous dispersion system in which the system of a dispersed particle range from 1 mm to 100 mm. Now the point comes, what is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixtures are basically the mixture of two phases, that is dispersed phase and the dispersed medium. Now here comes that coarse dispersion, it consists of two phases, the internal phase and the external phase. Here in internal phase, it consists of insoluble solid particles which are having range of 0.5 to 5 micron. And in case of external phase, the external phase may be generally aqueous in some instance and may be an organic or oily liquid for non-oral uses. Now I'm going to start with the types of coarse dispersion, and there are two types of coarse dispersions. One is suspension and the other one is emulsion. First, I'm going to explain emulsion. Emulsion is basically a biphasic liquid preparation in which we take two immiscible liquids, one of which is dispersed as a minute globules in the another one. Now we will start with the second option, that is suspension. Suspension is also a heterogeneous biphasic liquid dosage form in which the solid particles are dispersed in the liquid medium. Here, in simple words, I could say that the solid particles, they are dispersed phase and the liquid medium is the dispersion medium. Now, here if the particle size it is greater than 1 mm, then this dispersion is called the coarse dispersion. If the particle size is below than 1 mm, then it is called the colloidal dispersion. And the suspensions, they can be generally taken orally. Now we will start with the classification of suspension, and the classification is based on the 3 points, that is the particle size, the general classes, and the electrokinetic nature of the solid particles. First, we will start on the basis of the particle size. Here, it consists of 2 points, that is the coarse suspension
and the colloidal suspension. In coarse suspension, the particle size of the drug they range from 0.5 to 1 micron, which means the particle size is big. So due to its big size, it is a bit unstable. So to make it unstable, we need to increase its viscosity. Now we will go to the second point, which is colloidal suspension. The particle size in colloidal suspension, it ranged from 0.1 to 0.5 micron, which means the particle size is small, and due to the small size of the particles, it is more stable than the coarse suspension. We will go to the second point, that is on the basis of the general classes. It is again of two types, the oral suspension and the parenteral suspension. Oral suspension generally consists of the undissolved particles of one or more medicinal agents which are mixed with the liquid vehicle. Basically, here we take one or two, more than one medicines, and we dissolve it in the liquid vehicle so as to take it orally. The second point is the parenteral suspension, and these are the dispersed heterogeneous system which contains insoluble drug particles that are to be resuspended in the other aqueous or oil vehicle before administering to the patient. And the example of this is Procane penicillin G. Now we go to the second point, that is the classification on the basis of the electrokinetic nature of the solid particle. It is one of the most important points. It consists of two subheadings, that is flocculated suspension and deflocculated suspension. Now I will start with flocculated suspension. In flocculated suspension, the particles, they attract with each other due to the van der Waals forces. They form a floccules, and after making floccules, they become in a big size. And to the big size, they sediment at the bottom of the container very fast, and they form a space in between them. So if the patient have to take that medicine, it will shake properly, and the particles, they will redistribute very easily. But in case of deflocculated suspension, the particles, they do not attract with each other. They exist as a separate entity. So they settle down separately, and there is no space in between them. And due to that, when the patient will shake the medicine well, the particles, they will not redistribute easily. So in short, we can say that the deflocculated suspensions are more better than the flocculated flocculated suspensions are more better than the deflocculated suspensions. So here I will finish my topic. Thank you so much. Sir, the topic is finished. Sasikesh Shukla, Yes, sir. please start your topic. Okay, sir. Good afternoon, respected director, sir, teachers, all seniors, juniors, and my classmates. I am Sasikesh Shukla from B Farm second year. Today's my topic is emulsion. आज का हमारा टॉपिक है इमल्सन. इमल्सन बेसिकली होता क्या है? इमल्सन एक टाइप का कोर्स डिस्पर्जन होता है. कोर्स डिस्पर्जन आर हेट्रोजेनस मिक्सचर in which particle size of dispersed phase is greater than 0.5 micrometers. They are not able to pass through the simple filter paper, and अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं. अब हम आते हैं कि इमल्सन होता क्या है. इमल्सन क्या होता है कि इसमें दो लिक्विड्स होते हैं, जिसमें एक लिक्विड ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है. ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करते हैं इनको स्टेबल बनाने के लिए. अब आते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं. इमल्सिफाइंग एजेंट बेसिकली सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि लिक्विड्स में पाए जाने वाले इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सर मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल. अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन कि इमल्सन कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली इमल्सन दो टाइप के होते हैं. एक होता है सिंपल इमल्सन, एक होता है मल्टीपल इमल्सन. सिंपल इमल्सन को ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल होते हैं. मल्टीपल इमल्सन के एग्जांपल हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर. और लास्ट वाला हमारा है माइक्रो इमल्सन. जो फार्मास्यूटिकल इमल्सन होते हैं वो बेसिकली दो फेज से मिलके बने होते हैं, जिसमें एक फेज वाटर होता है, दूसरा फेज कोई ऑर्गेनिक फेज हो सकता है जैसे ऑयल, वैक्सी सब्सटेंस या फैट.
जो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, इसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होता है और वाटर क्या होता है, कंटिन्यूअस फेज होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम ऑयल इन वाटर इमल्सन बोलते हैं। अब हमारा दूसरा इमल्सन है वाटर इन ऑयल इमल्सन। ऐसा सिस्टम जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज हो और ऑयल कंटिन्यूअस फेज हो, उसको हम वाटर इन ऑयल इमल्सन बोलते हैं। अब हमारा थर्ड है मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन में क्या होता है, मल्टीपल इमल्सन बेसिकली जो सिंपल इमल्सन होते हैं उनको हम किसी अदर लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड कर देते हैं। इसमें जैसे पहला है वाटर इन ऑयल इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो ऑयल इन वाटर इमल्सन के ऑयल फेज में डिस्पर्स्ड होते हैं। सेकंड है ऑयल इन वाटर इन ऑयल। इसमें क्या है कि जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्सन के वाटर पार्ट में डिस्पर्स्ड होते हैं। अब हमारा लास्ट है माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन क्या होता है, माइक्रो इमल्सन बेसिकली जो हमारा सिंपल इमल्सन होता है उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। माइक्रो इमल्सन में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल साइज या ग्लोब्यूल साइज 0.1 माइक्रोमीटर से कम होता है। मींस इसमें जो ग्लोब्यूल्स का साइज होता है वो नैनोमीटर्स में होता है। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से ये नेकेड आई से इनविजिबल होते हैं। अब हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई इमल्सन जो हमें मिला है वह वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है डाई टेस्ट, तीसरा है कंडक्टिविटी टेस्ट, फोर्थ वन इज फ्लोरेसेंस टेस्ट। अब हम आते हैं अपने पहले टेस्ट पे जो कि है डाइल्यूशन टेस्ट। अब हमें कोई इमल्सन दे दिया गया, हमें नहीं पता कि ये कौन सा इमल्सन है। हमें चेक करके बताना है कि ये वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तो सबसे पहले क्या है कि बीकर में जो इमल्सन है उसको हम ले लेंगे, उसको हम वाटर ऐड करेंगे, मीन्स वाटर से डाइल्यूट करेंगे। अगर वो इमल्सन ऑयल इन वाटर होगा तो इमल्सन स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस फेज जो है उसमें वाटर होता है। और अगर इमल्सन वाटर इन ऑयल है तो वो ब्रेक कर जाएगा, मीन्स इसमें जो कंटिन्यूअस फेज होता है वो ऑयल फेज होता है, इसलिए अगर वाटर ऐड करेंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ इमल्सन ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। अब हमारा सेकंड टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या कहते हैं, हमें जो इमल्सन का सैंपल मिलता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड को बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर अगर बल्ब ग्लो करता है तो मीन्स वो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, क्योंकि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वो वाटर इन ऑयल इमल्सन है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। अब हमारा थर्ड है फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है, जो इमल्सन होता है उसको हम स्लाइड पे लेते हैं और यूवी लाइट से एक्सपोज कराते हैं। यूवी लाइट से एक्सपोज करा के माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में कंटिन्यूअस फ्लोरेसेंस देख ऑब्जर्व होती है तो वो जो इमल्सन होगा वो वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा। और अगर स्पॉटी फ्लोरेसेंस हमको दिखता है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्सन होगा। हमारा लास्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्या होता है, डाई टेस्ट बेसिकली हम डाई यूज करते हैं। डाई क्या होता है, डाई एक टाइप का कलरिंग एजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो इमल्सन होता है उसमें हम स्कारलेट रेड डाई को ऐड कर देते हैं, जो कि ऑयल सोल्यूबल डाई है। जब हम इमल्सन में स्कारलेट रेड डाई को ऐड करते हैं तो उसकी उस इमल्सन की एक ड्रॉप को स्लाइड पे लेते हैं, कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिन करते हैं। तो अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट होंगे वो स्कारलेट रेड डाई को ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब डिसॉल्व कर लेंगे, और जो ग्लोब्यूल्स होंगे वो रेड कलर के दिखाई देंगे। और जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि वाटर में ये स्कारलेट रेड डिसॉल्व नहीं होगा, खाली जो ऑयल फेज है उसी में डिसॉल्व होगा। तो जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स होंगे वो रेड कलर के ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे दिखेंगे। और अगर जो इमल्सन है वो वाटर इन ऑयल है तो जो बैकग्राउंड होगा वो पूरा रेड हो जाएगा, क्योंकि ऑयल फेज जो है वो कंटिन्यूअस फेज है, और ड्रॉपलेट जो होंगी वो ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देंगी। अब हम आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन को बना लिए हैं, फिर लॉन्ग टर्म तक उसको अगर हमें स्टेबल रखना है तो उसको
उसे स्टेबल रखना है तो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव बेसिकली टू टाइप्स के यूज करते हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन के एंटी, मींस ये ऑक्सीडेशन से इमल्सन को प्रिवेंट करता है। अब हम आते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इस ऑक्सीडेशन से इमल्सन को प्रिवेंट करता है। दूसरा हमारा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल मीन्स ये माइक्रोब्स को किल करता है। अगर हमारे इमल्सन में किसी भी टाइप का माइक्रोबियल अटैक होता है तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम यूज करते हैं उसमें, जो कि माइक्रोब्स को किल करता है। अब आते हैं पहला पॉइंट पे जो कि है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। जो इमल्सन है उसमें ऑक्सीडेटिव चेंज करने वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो इमल्सन होता है वो ऑर्गेनिक फेज कंटेन करता है। मींस उसमें वेजिटेबल ऑयल होते हैं, एनिमल ऑयल होता है, एनिमल फैट होता है, जो कि हाईली ससेप्टिबल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। और जो एंटीऑक्सीडेंट है ये इमल्सन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन से भी प्रिवेंट करता है। अब आते हैं कि आइडियल एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हमारा जो आइडियल एंटीऑक्सीडेंट है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मींस उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नॉन इरिटेंट होना चाहिए, मींस कोई इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए। सोल्यूबल होना चाहिए मीडियम में और स्टेबल होना चाहिए। इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन, मींस ये कम कंसंट्रेशन पे अगर हम यूज करें तो ये हाईली इफेक्टिव हो एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम ऐसा अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐसे प्रिपरेशन में ऐड कर रहे हैं, मींस जिसको हम ओरल रूट से लेते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे इमल्सन के ऑर्डर टेस्ट को खराब न करे, मींस उसके ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसमें है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन BHT, सेकंड है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA एक्सेट्रा। अब हम आते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव पे। हमारा जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है वो हमें माइक्रोब के अटैक से इमल्सन को प्रिवेंट करता है। जो इमल्सन होता है उसमें वाटर फेज पाया जाता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। ये माइक्रोब्स किसी भी इमल्सन पे अटैक करते हैं और उसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर को डेवलप करेंगे, कलर चेंज कर देंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इमल्सन को फाइनली ब्रेक कर देंगे, मींस उसका ब्रेकिंग कर देंगे। जो ये माइक्रोब्स होते हैं किसी भी इमल्सन में क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि जो हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है जैसे अगार हो गया, स्टार्च हो गया, ये नेचुरल ओरिजिन से ऑब्टेन होते हैं, तो ये हाईली ससेप्टिबल होते हैं माइक्रोब्स के लिए। सेकंड है वाटर इज नॉट प्रॉपरली स्टोर। अगर जो वाटर है वो प्रॉपरली स्टोर नहीं है तो उससे माइक्रोब्स अटैक करते हैं। अब आते हैं कि एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं वो नॉन इरिटेंट होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, फिजिकली और केमिकली कंपेटेबल होना चाहिए API से, मींस जो एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट है उसके साथ ये फिजिकली केमिकली कंपेटेबल होने चाहिए। अब आते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड, बेंजिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, फिनॉक्सी एथेनॉल। अब आते हैं फिजिकल स्टेबिलिटीज ऑफ इमल्सन। किसी भी इमल्सन की स्टेबिलिटी जो है हम उसको कैसे जानेंगे? मींस अगर जो हमारा इमल्सन है उसमें कोलसेंस, क्रीमिंग, फ्लॉकुलेशन नहीं है तो मींस वो स्टेबल है। अगर हम किसी भी इमल्सन की फिजिकल प्रॉपर्टी को पैरामीटर मान ले और उस फिजिकल प्रॉपर्टी को पैरामीटर मान के उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो इसको हम फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन बोलते हैं। किसी भी इमल्सन में इनस्टेबिलिटी कॉज कैसे होती है? इनस्टेबिलिटी कॉज करने के क्या रीजन है? वो है फ्लॉकुलेशन एंड क्रीमिंग, कोलसेंस एंड ब्रेकिंग, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फेज इन्वर्जन। अब हमारा पहला पॉइंट है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन में क्या होता है? जो ऑयल की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट होती हैं वो ज्वाइंट करती हैं और क्लम्स या फ्लॉक को फॉर्मेशन करती हैं। वो क्लम्स या फ्लॉक्स जो कंटिन्यूअस फेज होता है उसमें सेटल डाउन कर जाती हैं।
ये जो एग्रीगेशन होता है ये हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। ये इनिशियल स्टेज होता है जो कि इमल्सन में इनस्टेबिलिटी को कॉज करता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि जो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो फ्लॉक्स को बना रहे हैं और नीचे सेटल डाउन कर रहे हैं इमल्सन में, फ्लॉकुलेशन में। जो फ्लॉकुलेशन की रेट होती है ये डिपेंड करती है ग्लोब्यूल्स के साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे और एक्सटर्नल फेज की वेस्कोसिटी पे। अगर जो हमारा ग्लोब्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली साइज्ड है, मींस उनका साइज एक समान है, सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, तो जो फ्लॉकुलेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मींस अगर हम प्रॉपर साइज रिडक्शन के थ्रू यूनिफॉर्म साइज के ग्लोब्यूल्स ऑब्टेन करते हैं, उससे इमल्सन बनाते हैं, तो फ्लॉकुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सेकंड पॉइंट है कि हम एक्सटर्नल फेज जो हमारा है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दे। यहाँ पे हम विस्कोसिटी इनहेंसमेंट करने वाले एजेंट यूज कर सकते हैं जैसे ग्लिसरॉल वगैरह, तो उनको यूज करके हम एक्सटर्नल फेज जो है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दें, तो इससे भी इमल्सन में फ्लॉकुलेशन नहीं होगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या है? क्रीमिंग बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स है टॉप या बॉटम पे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स हैं वो इमल्सन में टॉप या बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है। इमल्सन में इसमें टॉप पे ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? डेंसिटी पे, इंटरनल फेज की। अगर जो इस अगर किसी भी इमल्सन में क्रीमिंग हो जाती है तो जो हमारा ड्रग है उसमें डोजेज में वेरिएशन आ जाता है। मींस जैसे क्रीमिंग हो गई तो हमें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें डॉक्टर ने या प्रिस्क्राइबर ने बोला है कि हमें एक स्पून कोई भी इमल्सन लेना है और एक स्पून में 300 mg ड्रग आती है। तो अगर उसमें क्रीमिंग हो गई तो जब हम एक स्पून को लेंगे इमल्सन तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 100 mg ड्रग ही हमें मिले। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही इमल्सन पे डायरेक्शन होता है कि सेक वेल बिफोर यूज, यूज करने से पहले इसको अच्छे से सेक करना चाहिए। ये क्रीमिंग क्या होती है? बेसिकली टू टाइप की होती है, एक होती है अपवर्ड क्रीमिंग, एक होती है डाउनवर्ड क्रीमिंग। अपवर्ड क्रीमिंग में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो हमारा लेस अमाउंट में होता है और कंटिन्यूअस फेज जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, या हाँ कंटिन्यूअस फेज ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके ये बेसिकली ऑयल इन वाटर इमल्सन में देखने को मिलता है। डाउनवर्ड क्रीमिंग में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो हैवियर होता है देन कंटिन्यूअस फेज। इसमें जो बेसिकली वाटर इन ऑयल इमल्सन है उसमें ये देखा जाता है। अब आते हैं स्टोक्स लॉ पे, क्योंकि क्रीमिंग जो है स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें रेट ऑफ क्रीमिंग v इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है डायग्राम में देखिए, v इज इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस माइनस रो ओ, ब्रैकेट क्लोज है, फिर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, और नीचे है 18 ईटा स्क्वायर। मींस जो रेट ऑफ क्रीमिंग है वो ग्लोब्यूल्स के डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इमल्सन के विस्कोसिटी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो है कोल्सेंस। कोल्सेंस क्या होता है? जैसे हमारा इमल्सन है, इमल्सन में यूनिफॉर्म साइज के ग्लोब्यूल्स नहीं है, कुछ ग्लोब्यूल्स बड़े साइज के हैं, कुछ ग्लोब्यूल्स छोटे साइज के हैं। तो जो छोटे साइज के ग्लोब्यूल्स होंगे वो बड़े साइज के ग्लोब्यूल्स के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसमें चले जाते हैं। इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है वह इमल्सन में कोल्सेंस कॉज करता है। कोल्सन बेसिकली दो वजहों से हो सकता है, दो रीजन हो सकते हैं इसके। पहला है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। हम जो भी इमल्सीफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं अगर वो हमारा इनसफिशिएंट है तो उसमें कोल्सेंस कॉज करेगा इमल्सन में। सेकेंड पॉइंट है इनकम्पेबिलिटी बिटवीन इमल्सीफाइंग एजेंट। हमारे जो इमल्सीफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं अगर वो ड्रग के साथ या किसी अदर कंपाउंड के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ इमल्सन के इनकम्पेटेबल है, मीन्स उससे कोई रिएक्शन हो जा रही है, कोई अदर रिएक्शन कॉज कर रही है जो कि उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो फिर कोल्सेंस कॉज होता है। अब हमारा चौथा पॉइंट है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मीन्स क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इंटरनल फेज फ्रॉम द एक्सटर्नल फेज। इसमें क्या होता है, जो ऑयल फेज होता है वो एक्वस फेज से टोटली सेपरेट आउट हो जाता है। अब हम आते हैं कि ब्रेकिंग होता क्यों है। जब हम इमल्सन को बनाते हैं तो इमल्सन बनाने के बाद
उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स होते हैं, सर एक मिनट वेट, जब हम इमल्सन बनाते हैं तो इमल्सन में जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो डिस्पर्स्ड फेज को चारों तरफ कवरिंग फॉर्म करता है। तो ये जो कवरिंग सेल्ट होती है, अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो इमल्सन में ब्रेकिंग कॉज होती है। अब आते हैं फेज इन्वर्जन पे। फेज इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे हम कोई इमल्सन बना रहे हैं और हमारा एम या मोटो है कि हम वाटर इन ऑयल इमल्सन बनाएंगे, बट किसी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, हमें वाटर इन ऑयल इमल्सन न मिलके ऑयल इन वाटर इमल्सन ऑब्टेन होता है, तो इसको हम फेज इन्वर्जन कहते हैं, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाना। अब हम आते हैं माइक्रो इमल्सन पे। माइक्रो इमल्सन क्या है? माइक्रो इमल्सन क्या होता है? बेसिकली सिंपल इमल्सन ही होता है, बट इस पे जो हमारा ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। इसके कंपोजिशन पे आते हैं। इसके कंपोजिशन में बेसिकली क्या होता है? ऑयल होता है, वाटर होता है, सरफेक्टेंट होता है, को सरफेक्टेंट होता है। अब आते हैं मेजर गोल्स ऑफ माइक्रो इमल्सन, कि हम माइक्रो इमल्सन क्यों बनाते हैं। टू इम्प्रूव द ड्रग स्टेबिलिटी, मीन्स ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम माइक्रो इमल्सन को बनाते हैं। टू इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी, हम ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइक्रो इमल्सन बनाते हैं। अब आते हैं कि ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी को खाली यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचिंग टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मींस ड्रग का वह अमाउंट जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन मींस ब्लड तक पहुंचता है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। इजी ऑफ प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन करने में हमें इजी होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन कितने टाइप्स के होते हैं? वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ये माइक्रो इमल्सन है। इक्विपमेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन को बनाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके बारे में। कोलॉइडल मिल यूज करते हैं, रोटर मिल यूज करते हैं, होमोजेनाइजर यूज करते हैं। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रो इमल्सन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइक्रो इमल्सन को हमारे इफेक्ट करते हैं। पहला इसमें पैकिंग रेशियो, सेकंड है प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल फेज, थर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ सरफेक्टेंट की सरफेक्टेंट हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है। अब आते हैं हम थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन मतलब हम कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को कैसे प्रमोट करता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इमल्सिफिकेशन की थ्योरी आई हैं, जिनमें बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। हम कुछ पे डिस्कशन करेंगे। पहला, इमल्सिफिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। हमारी फर्स्ट थियरी है सरफेस टेंशन थियरी, सेकंड है ओरिएंटेड वेज थियरी, थर्ड है इंटरफेसियल फिल्म थियरी। अब हमारा फर्स्ट है सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ये बेसिकली सरफेक्टेंट होते हैं। सरफेक्टेंट मींस ये जो लिक्विड होता है उसके इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे दोनों लिक्विड एक दूसरे से इजिली अटैच हो जाते हैं और स्टेबल रहते हैं। सरफेक्टेंट क्या होता है? जो बड़े साइज के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल साइज में ब्रेक कर देता है और उनकी जो रीयूनिट होने की टेंडेंसी है उसको फिनिश कर देता है। अब हमारी दूसरी है ओरिएंटेड वेज थियरी। ओरिएंटेड वेज थियरी क्या कहता है? ओरिएंटेड वेज थियरी बोलता है कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स हैं उसके चारों तरफ जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो एक कवरिंग को फॉर्म करेगा। जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये एम्फीफिलिक होते हैं, मींस हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और लिपोफिलिक भी होते हैं। अब आती है बात, ये हाइड्रोफिलिक क्या है, लिपोफिलिक क्या है। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, लिपोफिलिक मींस लिपिड सॉल्युबल या लिपिड लविंग। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो एम्फीफिलिक है, मींस वाटर सॉल्युबल भी है और लिपिड सॉल्युबल भी है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट है वो खुद को ओरिएंट कर लेगा, इसमें ओरिएंटेशन होगा, मींस जो इसका वाटर सॉल्युबल पार्ट है वो वाटर से अटैच हो जाएगा और जो लिपोफिलिक पार्ट है वो लिपिड से या वैक्स से या ऑर्गेनिक फेज से बाउंड कर जाएगा और दोनों लिक्विड को एक दूसरे से अटैच कर देगा और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। हमारा लास्ट थियरी है इंटरफेशियल फिल्म थियरी। ये थियरी क्या कहती है
ये थियरी बेसिकली कहती है ना, जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसको दो लिक्विड के इंटरफेस पे प्लेस करती है। मींस जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो इंटरफेस पे है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको एक थिन फिल्म में अराउंड उसके चारों तरफ एक थिन फिल्म बनाती है। मींस जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स हैं उसके चारों तरफ ये इमल्सिफाइंग एजेंट एक थिन फिल्म लेयर का फॉर्मेशन करती है। जो वाटर सॉल्युबल एजेंट होते हैं वो ऑयल इन वाटर इमल्सन को इनकरेज करते, मींस बनाने में हेल्प करते हैं, और जो ऑयल सॉल्युबल एजेंट होते हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्सन को बनाने में इनकरेज करते हैं। अब किसी भी इमल्सन को बनाने का जो मेन मेन पॉइंट है वो है इंटरफेसियल टेंसर को कम करना। किसी भी मेथड का यूज करके अगर हम दोनों लिक्विड के इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो इमल्सन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इजी होता है। हो गया सर? A very good afternoon to respected President Sir, Director Sir, all my faculty member, respected alumni, seniors, and my dear friends. Now I proceed this webinar. We discuss about multiple emulsion. In this topic, we will discuss what is the definition of multiple emulsion, what are the type of multiple emulsion, what are the formulation parameter of multiple emulsion, and method of preparation, and how the drug will release from the multiple emulsion, and finally the evaluation parameter and application. Now first we will see the definition of multiple emulsion. It is an emulsion system of dispersed phase which contain small droplets or which are having the same composition to the external phase, and it is a complex system. For example, here it is an emulsion system. We correlate this example with the definition. Here it is an emulsion system having dispersed phase water in oil which contain a small droplets of water which are having the same composition to the external phase which is also water. And here a layer of oil which is hydrophobic separated the two phases, intrinsic phase which is water and external phase which is water. Hence in this way multiple emulsion is exist. Let me see the types. Basically multiple emulsion are of two types. First one is water in water emulsion, and second one is oil in oil emulsion. Now first one, water in water emulsion. In this system, an organic phase which is hydrophobic separates internal and external aqueous phase. In this system, primary emulsion is water in oil and external phase is water. For example, if you want to prepare water in water emulsion, then you have to prepare primary emulsion, water in oil. Then you have to disperse as a globule this primary emulsion into the external phase or aqueous phase. Then you will get water in water emulsion. Now second one, but oil in oil emulsion. In this system, an aqueous phase which is hydrophilic separates internal and external oil phase. In this system, primary emulsion is oil in water and external phase is oil. For example, if you want to prepare oil in oil emulsion, then you should have prepare primary emulsion, oil in water. Then you will disperse it as a globule into the oil phase. Then you will get oil in oil emulsion. Now, what are the formulation parameter for multiple emulsion? Pre-formulation. For preparation of multiple emulsion, you have to choose an oil phase with two surfactants. These two surfactants selected on the basis of HLB value. What is HLB value? Nothing but hydrophilic and lipophilic balance. Means to check the hydrophilicity and lipophilicity of emulsifying agent, we use HLB. Now, two surfactant in which one surfactant should have low HLB value, means less than 5. For example, span 60, span 80. And the second one, surfactant should have high HLB value, means more than 5. For example, twin. Let me see the
method of preparation of multiple emulsion. Multiple emulsion can be prepared by using two techniques. First one is two-step emulsification and second one is phase inversion technique. Now, two-step emulsification technique. This is also called double emulsification and it is a two-step technique. Let's see procedure. In first step, first you have to prepare primary emulsion, either it is oil and water in oil. And in second step, you have to re-emulsify this primary emulsion by using either excess oil or water. For example, if you want to prepare oil in oil emulsion, then you have to re-emulsify this oil in water primary emulsion with excess of oil. Similarly, if you want to prepare water in water emulsion, then you have to re-emulsify this primary emulsion, that is water in oil, with excess of water. Now second one, phase inversion technique. Firstly, we should know what is phase inversion. Changing of oil in water phase into water in oil phase and vice versa. This phase conversion called phase inversion technique. It based on a principle that the addition of hydrophilic phase which contain hydrophilic surfactant like twins to the oil phase, the oil phase contain lipophilic surfactant like liquid paraffin. Now let's see the procedure. In this procedure, for this procedure, we are going to use pink mixture. You have to take definite volume of oil like 10 ml, 5 ml, 100 ml, definitely measured volume take and place in the pink mixture. So once you place oil in pink mixture, you have add water, means aqueous phase, like droplet wise, which contain hydrophilic surfactant. When you adding the water phase to the oil phase, the pink mixture should be in rotating condition. You have to rotate pink mixture at 88 rpm. You have to add hydrophilic surfactant to this oil phase and at the rate of 5 ml per minute. You should maintain this optimum speed. Like this, you continue the addition. So when the phase volume ratio between oil and aqueous phase is exceeding 0.7, you have to stop the addition. And you observe that the oil phase completely substituted with the aqueous phase. Now that the phase inversion will happen, so that you will get the multiple emulsion. Now let's see again in a brief what is in this technique. Firstly, you have to take an oil, then you add hydrophilic surfactant into it, that like a globule. Then you exceed amount of water. So the primary emulsion water in oil is again surrounded by the external phase, that is water. Then you form water in oil in water emulsion. This type of emulsion is water in oil in water. Now, drug mechanism. What is drug mechanism? How drug will release from multiple emulsion. Drug will release from multiple emulsion by so many mechanisms like facilitated diffusion, thinning of oil membrane, rupture of oil membrane. These are the mechanisms which drug use to release. Now, evaluation parameter. To evaluate multiple emulsion, we're going to check some parameters such as droplet size, number of globule present, average globule size distribution. Now let's see the last one, application. We can use multiple emulsion in cosmetic products. Multiple emulsion prevent or reduce the degradation of cosmetic product. And in pharmaceutical preparation, multiple emulsion protect active pharmaceutical ingredients. Multiple emulsion also used in organic chemistry and used in drug target. Means if two drugs interact each other and give any harmful effect, then multiple emulsion prevent interaction of two drugs by making a layer. And we also use multiple emulsion for sustained release, means long-term release of drug. We use multiple emulsion. Okay, thank you, sir. Hello.
hopefully this webinar might have added more knowledge about emulsion and its various features, which are going to be very important from the examination point of view. If any question or doubt is there in your mind, you can send it through WhatsApp group and it will be suitably answered by the presenters or by your subject teacher. I must uh, congratulate all the students who have presented this topic in today's webinar for their excellent effort. It is a matter of great delight for us that one of your alumni, Mr. Pankaj Sharma, is present today with us. And in a very short span of time, he has spared some moments from his busy schedule. He has been academically bright student of our college, and now I would like to invite Mr. Pankaj to share his views about today's webinar. Mr. Pankaj. Thank you, sir. Thank you for this intro. First of all, thanks for providing me this opportunity to be a part of this initiative. Today, I got a chance to interact with my juniors and to share my knowledge and experience with the juniors. So, firstly, I have few suggestions for you all guys. That number one, that try to make PPTs. Do not use PDFs over here in webinars. Hello? Yeah, hello. Am I audible, sir? Yes, you are. Please. Yeah. First of all, try to make PPTs. Do not use PDFs over here. This is too time taking and all. Second one is try to squeeze these long paragraphs into simple lines and try to use less and less words to present while you are in webinar now. Rest emulsion. This topic is very quite interesting. Like it is nothing, just a mixture of two liquids with distinct characteristics. In our day-to-day life, we have seen a number of examples like milk, butter, these paints, and all. These are emulsions, and which we can use. These knowledge which we can use in any manner. So, is there anything which I can help with you out, or anything which I can support you all? You can ask me anytime. Anything for me, sir? Any student, any junior, anything for me, sir? Hello. Am I audible, sir? थोड़े कम आ रही है आवाज. Okay. Sir, is there anything else for me? Thank you very much, Pankaj. Thank you very much for your presence, for your gracious presence today. I think that our students will definitely get motivated and inspired by your presence, that even after leaving the college, you have been associated with us, and you will definitely prove a guiding force for our existing students. Thank you very much, Pankaj. Honor, sir. Now I would like to invite any faculty member, if he or she, any faculty member who wants to share their views about today's webinar. They may raise their hands if anyone. They may raise their hands if any faculty member wants to share their views. Mukesh, you can give the final concluding remarks. Hello, Mukesh.
I think there is some network problem. Okay, then thank you very much to all the participants, and I want to extend my good wishes for all the students as the exams are approaching nearer, and all of you should put your 100% to get success in the forthcoming exam. हेलो Sir, नमस्कार सर, प्रणाम सर. ये नमस्कार. हाउ आर यू डॉक्टर जी? अभी सब लोग चले तो नहीं गए, सभी हैं या चले गए सब लोग? नहीं, सब लोग हैं सर. They are अभी there. आपने बोल दिया ना, अभी आपने बोल दिया ना कि चले जाओ. नहीं सर, यहीं पर हैं सर सब लोग. ये तो बहुत है. We are, hello participants. It is a matter of great pride and honor for us that Professor Dr. R.K. Khandal ji, he has been a great guiding force in organizing this webinar series, and in giving his valuable comments and instructions to our students. Now I would like to invite Dr. Professor Khandal sir to, sir, please give your blessings to our students. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर शर्मा एंड प्रोफेसर मनीष कुमार. मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो फैकल्टी इन्वॉल्व थी इसमें, कैन आई हैव अ लुक एट देम? मुकेश जी. Yes, sir. जी सर. जी हेलो जी. Good evening, आपने sir. बनवाया था इनसे ये? What Yes, is sir. what is your good name? I'm sorry, we are not. My name is Mukesh Kumar. मुकेश जी. और कौन इन्वॉल्व थे? आप अकेले थे या कोई और भी फैकल्टी थी? सर मैं अच्छा, अकेला ही था. आप कहाँ से पढ़े हैं मुकेश जी? सर मैं D Farm IMT College of Medical Sciences Meerut, and the M Farm is completed by and RV Northland Institute, Greater Noida, Okay. Dadri. और अभी क्या कर रहे हैं आप? PhD नहीं कर रहे? No sir. Please register for PhD. अभी Please enrollment है. register for PhD and I will guide you for PhD. Okay. And we will Okay, work sir. and we Thank you, sir. and It's we my will work pleasure. on microemulsions. Okay. Okay, अच्छा, sir. अब मेरे को चारों स्टूडेंट से मिलवा देंगे, अपने चारों स्टूडेंट जो प्रेजेंट किया. जी सर. मनीषा, Yes, are you sir. there? मनीषा मैडम, Yes, sir. कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो आप. कितना अच्छा बोलते हो. Thank you, sir. एक चीज इतना क्रिस्टल क्लियर. और इतना अच्छा इंग्लिश कहाँ से सीखा आपने? So, school side से ही था. Greenfields. I've studied school from Greenfields Public School. So, from there only. और कहाँ के हो आप? From Delhi, sir. I'm from Delhi. दिल्ली. तो मोदी नगर में रहते हो, हॉस्टल में? No, sir. Up down करती हूँ मैं. तो Yes, मनीषा जी, एक तो अप डाउन मत किया करो. दिल्ली में कहाँ रहते हो? Sir, actually, I used to live in Delhi, but now I live in Ghaziabad here, Shalimar Garden, at the Okay. border. तो फिर वो Yes. पास है, वो ज्यादा दूर नहीं है फिर तो. Yes, ठीक sir. है. It is near. I can do up down. अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. अच्छा, ये बताओ, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? So around 50 to 58. 52 to 58 around. I'm not sure about the exact. 52 to 58, इतना बड़ा रेंज. अच्छा, ये बताओ कि ये जो प्रेजेंटेशन आपने की, ये आपने बच्चों से शेयर की? Yes, sir. तो उनके क्या कमेंट्स थे? They didn't say anything. अच्छा, अभी जब ये चल रहा था तो कुछ चैट वैट में कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे थे? Not yet, sir. I was अच्छा, अभी concentrating. सारे आपके क्लासमेट्स हैं यहाँ पे? Majorly they are. अच्छा, आपने सबको बोला था कि भाई मेरा प्रेजेंटेशन है, आप आना? ऋषिकेश शुक्ला. Good afternoon, sir. जी शुक्ला जी.
I am Sasikesh Shukla from B Pharma second year. सती Sasikesh Shukla, और Sasikesh. शशिकेश शुक्ला, वेरी गुड शुक्ला जी। कहाँ से हो आप? इलाहाबाद से हो? कहाँ से? बनारस से? सर इलाहाबाद से। इलाहाबाद, ओके। कितना अच्छा भाषण दिया आपने। और देखो मुझे पता है इतने बढ़िया तरीके से आपने समझाया, मल्टीपल इमल्शन बताया ना आपने। नहीं, हाउ टू सर मेरा टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, हाँ हाउ टू टेस्ट आपने बताया, यस हाउ टू टेस्ट, है ना? डाई सर टेस्ट, डाइल्यूशन यस टेस्ट, है ना? यस मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर वेरी गुड। आपके पेरेंट्स थैंक सुन रहे हैं आपको कि नहीं? यस सर सुन रहे हैं उनको लिंक दिया है? अभी वो लाइन पे ऑनलाइन है आपके पेरेंट्स? यस सर क्या क्या शुभ नाम है आपके पेरेंट्स का? सर पापा का नाम है मिस्टर लोकनाथ शुक्ला तो जरा मनीष जी मिलाएंगे लोकनाथ शुक्ला जी से। सर सर वो यहीं पे है मैं मतलब इलाहाबाद में ही हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हैं यहाँ पे आपके पास हैं तो बुलाइए। यस सर नहीं, सर यहाँ पे बुलाए आपके पास नहीं है तो मत बुलाइए। अगर आपके पास, आपको सुन नहीं रहे थे क्या? सर वो सुन रहे थे जैसे खत्म होने वाला था तो चले गए फिर और मॉम का है? मॉम सर वो भी यहीं पे है तो मॉम को बुलाइए, मॉम को बुलाइए। तक जी शुक्ला जी प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। बहुत प्यारा बेटा है आपका शुक्ला जी। थैंक यू। हमारे साथ आपका भी है। नहीं, कितना कितना अच्छा बोला, बड़ा संस्कारी बेटा है। आप क्या करते हो शुक्ला जी? हम तो सर यही कचहरी में वो प्रैक्टिस करते हैं। वेरी गुड। कैसा लगा आपको बेटे को सुन के? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत और ये सब्जेक्ट कैसे बनाया, उसने तैयार कैसे किया अपना ये सब्जेक्ट? ये तो सर हमने देखा नहीं कैसे कभी किया है। सुबह तो मम्मी ने देखा होगा, मम्मी ने देखा होगा। वो भी वो तो नहीं, उसने देखा नहीं। ये तो अपना सब्जेक्ट अपने खुद ही तैयार करता है। हम तो वेरी सुबह 10 बजे चले जाते हैं, थोड़ा जल्दी आ गए। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक ठीक बहुत ठीक प्यारा सर, बेटा है। ओके, ठीक सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो शुक्ला जी, पंकज शुक्ला नो? शशिकेश शुक्ला हाँ, शशिकेश शुक्ला। अच्छा, तो आपको क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब जब आपने मेरा प्रिपेयर किया, प्रिपेयर कैसे किया आपने? सब प्रिपेयर सर ने बताया था और जो डाउट होते थे सर से क्लियर कर लेते थे बस पढ़ा। सर आपके बहुत अच्छे हैं ना? हाँ सर वो अच्छे हैं। और अपनी क्लास में और किस किस से आपने कंसल्ट किया था? सर क्लास में मैंने बस आयुषी शर्मा थी और बहुत सारे पंकज कनौजिया, जितेंद्र, ये आयुषी सब मेरे शर्मा फ्रेंड। कौन थी? आयुषी शर्मा कौन थी? सर अभी थर्ड प्रेजेंटेशन जिसका था। और पंकज हैं, ये लोग अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। ओके, आयुषी मैडम को बुलाओ तो। ओके थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अभी आप जाना मत, अभी मैं भाषण दूंगा। ओके ओके सर। यस Very good आयुषी मैडम। afternoon, sir. जी जी जी, आयुषी मैडम Yes, sir. कैसा अच्छा लगा, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो आप। वेरी गुड। Thank अच्छा you, बताओ, sir. मॉम है आपके साथ अभी? Yes, sir. यहीं पे बैठी है, अपना वेट कर रही है। वेट कर रही है? कितना वेट है? सर वेट कर रही है कि आपसे मिलने। माय मैडम जी प्रणाम। सॉरी सर, मैडम प्रणाम। मैडम प्रणाम। आपकी बेटी बहुत प्यारी है और इतना अच्छा बोलती है। आपने प्रिपेयर कराया उसको, आपने आपके साथ तैयारी किया उसने? मोम बोल ही नहीं रही है मैडम, आयुषी मैडम। तो वो मम्मी की वॉइस बहुत कम है। अच्छा, ऐसा है कि मुझे बधाई देनी थी मैडम आपकी मॉम को, और भविष्य में। और डैड कहाँ हैं? पापा भी बाहर हैं। चलो ठीक है, तो जब आएंगे तो उनको बता देना बहुत अच्छा हुआ था। और जब भी फ्यूचर में प्रिपेयर करो ना, तो मॉम को सामने बिठा लिया करो एज योर स्टूडेंट। यस सर। ओके। मेरा भाई था सर। छोटा है ना? छोटा है ना? बड़ा। ओके, तो वो क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं?
सर वो मेरे बिल्कुल अपोजिट है, मैं उसके पास बैठ के पढ़ाई करती हूँ ताकि वो भी करे। नहीं सुना नहीं मैंने, क्या कहा आपने? सर मेरा भाई बीटेक कर रहा है, 4th ईयर में है। ओके। सर वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता इसमें स्टडी में, तो उसके पास बैठ के पढ़ती हूँ ताकि वो भी इंटरेस्ट ले थोड़ा बहुत। और कितना रिस्पॉन्सिबल हो, कितना। और भाई कहाँ पढ़ रहा है? सर आरडी कॉलेज। अच्छा ठीक है, आपके साथ पढ़ लेता, वहां नहीं पड़ेगा, बट बहुत अच्छा बोले आप। ओके, नेक्स्ट कौन है कैंडिडेट? नेक्स्ट कौन थे आपके क्लासमेट? सर हम 3 थे। अच्छा आप 3 थे। तो जो पहले वाली मैडम थी, मानसी मैडम थी ना? मनीषा। हाँ मनीषा मैडम को मिलाओ जरा। मनीषा मैडम, Yes, sir. आपकी मॉम से नहीं मिले, आपकी मॉम को बुलाओ। Sure, sir. Sure. Just a moment, please. हम्म। मम्मा, सर को बात करनी है। हाँ। अरे वो सर, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ जी, क्या करती है मॉम आपकी? सर, शी इज अ ब्यूटिशियन। ओ ब्यूटिशियन, वेरी गुड, वेरी नाइस। और डैड क्या करते हैं? सर, ही इज अ बिजनेसमैन। ओह, बिजनेस। मैडम प्रणाम। प्रणाम मैडम। बस बढ़िया। बहुत प्यारी बेटी है मैडम आपकी। थैंक यू। बहुत सुंदर है। इसको ब्यूटी, इसको वो करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है इसकी। थैंक यू सर, थैंक और यू। बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। बहुत बहुत बधाई मैडम। ओके, थैंक यू वेरी मच मनीषा मैडम, प्राउड ऑफ यू। ओके, तो अभी प्रोफेसर शर्मा, मैं थोड़ा सा बताऊं बच्चों को कुछ। प्रोफेसर शर्मा। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इट विल मैटर अबाउट। देखिए ऐसा है कि इमल्शन, डिस्पर्जन, सस्पेंशन, सब लोग, सारे बच्चे सुन रहे होंगे, ये सारा मामला फेजेस का है। और फेज 3 होते हैं। एक होता है सॉलिड फेज, एक होता है लिक्विड फेज, और एक होता है गैस फेज। अब फेजेस में 2 चीजें होती हैं, एक मिसिबिलिटी, एक इमिसिबिलिटी। तो जब एक फेज दूसरे फेज में मिसिबल होता है तो सिंगल फेज बनता है। जैसे शुगर सॉलिड है और पानी लिक्विड है, दोनों 2 डिफरेंट फेज हैं, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया। लेकिन जब शुगर को पानी में डाल दिया तो वो मिसिबल है, उसमें घुल जाता है, सॉल्युबल है। मिसिबल इज रॉन्ग वर्ड, सॉल्युबल है वो उसमें। तो जब वो सॉल्युबल हो जाता है तो आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें शुगर घुली हुई है, तो 2 फेज का एक फेज बन जाता है। इसी प्रकार से यदि ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होगी, जैसे होती है, ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है, या गैसियस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो वो दिखती नहीं है, तो वो सिंगल फेज हो जाता है। तो एक फेज हुआ गैस, एक फेज हुआ लिक्विड, लेकिन दोनों घुल गए तो बन गया फिर से लिक्विड। इसी प्रकार से यदि एक सॉलिड एक गैस के साथ हुआ तो भी एकदम, अगर घुल गया तो एब्जॉर्ब हो गया तो एकदम एक ही फेज नजर आएगा। लेकिन यदि वो एक दूसरे में मिसिबल या सॉल्युबल ना हो तो हमें एक डिफरेंट फेज मिलता है जो क्लियर नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए यदि सॉलिड को पानी में डाला और वो घुला नहीं, तो वो दिखेगा, मिल्की दिखेगा, वाइट दिखेगा, सस्पेंड दिखेगा, सेटल्ड दिखेगा, ऊपर दिखेगा, टॉप लेयर पे उठा हुआ, तैरता हुआ दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट बिहेव्स विद वाटर। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2 फेज जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं
और जब वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, कॉम्पैक्ट नहीं होती, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स मिलते हैं। तो यदि सॉलिड लिक्विड में है और मिसिबल नहीं है तो वो होगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन और सस्पेंशन दोनों बहुत पास पास होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको कैसे डिस्पर्स और सस्पेंड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द एजेंट यूज्ड टू डिस्पर्स और सस्पेंड, you will get dispersion or you will get suspension. यदि मान लीजिए आपका एक लिक्विड है और दूसरा लिक्विड है और दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं है, जैसे नारियल का तेल और पानी, जैसे घी और पानी, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक दूसरे में घुलेंगे नहीं तो ये इमल्शन बनाएंगे। और यदि गैस और लिक्विड है और घुले नहीं है तो ये फोम बनाएंगे। अगर गैस लिक्विड में है तो फोम बनेगी और लिक्विड गैस में है तो मिस्ट बनेगा, फॉग बनेगा। तो अब आप देख लीजिए, फॉग भी मालूम है आपको और फोम भी मालूम है। अब आज हमने चर्चा की इमल्शन की। तो इमल्शन बेसिकली वाटर और समथिंग विच इज नॉट वाटर लाइक, दोनों का मिश्रण है। इसको एक फेज में लाते हैं। जब इमल्शन होता है वो एक फेज है, सिंगल फेज है। अगर वो दो फेज होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे आपको बताया था, हमारे शुक्ला जी बता रहे थे, शायद वो बता रहे थे कि क्रीमिंग होती है। जब डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर चला जाता है तो क्रीमिंग हो जाती है, डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे बैठ जाता है। वो नीचे ना बैठे, वो ऊपर ना चला जाए, तो उसके लिए हम सरफैक्टेंट्स यूज करते हैं। तो मेरी आपके फैकल्टी से, आपके टीचर महोदय से, मुकेश कुमार जी से, प्रोफेसर मुकेश कुमार से और प्रोफेसर शर्मा से निवेदन है कि मैं एक अपना, मेरा स्टूडेंट है जो सरफैक्टेंट का एक्सपर्ट है, वो आपको एक वेबिनार देगा ओनली ऑन इमल्शंस एंड इमल्सिफायर्स। कोई भी फूड प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदते हो, उस पे लिखा होता है इमल्सिफायर। आप बिस्किट लेते हो, चॉकलेट लेते हो, सब पे इमल्सिफायर लिखा रहता है। पर्पस ये होता है कि जब दो डिफरेंट फेज को मिला के एक फेज बनाते हैं तो इमल्सिफायर की आवश्यकता होती है। इमल्शन के लिए इमल्सिफायर होता है, डिस्पर्जन के लिए डिस्पर्सेंट होता है, सस्पेंशन के लिए सस्पेंडिंग एजेंट होता है। उसको अगर वो पॉलीमेरिक है तो वो डीफ्लॉक्युलेंट है। ओके, कई बार टर्म यूज करते हैं डीफ्लॉक्युलेंट, कई बार टर्म यूज करते हैं फ्लॉक्युलेंट। जब हमको सस्पेंशन को ब्रेक करना होता है तो हम फ्लॉक्युलेंट यूज करते हैं। फ्लॉक्युलेंट पॉलीमर होते हैं और डीफ्लॉक्युलेंट भी पॉलीमर होते हैं, बट वो सस्पेंड करते हैं, सेटल नहीं होने देते हैं। इसी तरीके से यदि लिक्विड लिक्विड नहीं होगा और गैस लिक्विड होगा तो फोमिंग होता है, तो फोमिंग एजेंट यूज करते हैं। आप देखिए, जब आप मनीषा मैडम मॉम से बात नहीं, मेरे से बात करो, सुन लो। जब लिक्विड नहीं होता और जब गैस टू लिक्विड होता है तो फोम होता है, तो फोमिंग एजेंट यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस आजकल होती हैं जिसमें फ्लाई ऐश यूज करते हैं, उसमें फोम भर देते हैं, तो फोमिंग एजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी साबुन का पानी भर के और उसमें गुब्बारे वो हवा देते हैं तो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बनते हैं फोम के, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उसमें एयर इन लिक्विड होता है, गैस इन लिक्विड, तो फोम बनता है। बट जब लिक्विड इन एयर होगा तो फॉग बनेगा, तो फॉगिंग करते हैं, जैसे मॉस्किटो मारने के लिए फॉगिंग करते हैं। तो ऑल ऑफ देम विल रिक्वायर सरफैक्टेंट। एंड जैसे बताया आपको कि आपने चर्चा की आप लोगों ने कि सरफैक्टेंट जो है वो यूनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और मेरा स्पेशलाइजेशन सरफैक्टेंट है। ओके, पूरे जीवन मैंने और कुछ किया ही नहीं, केवल सरफैक्टेंट डेवलप किए हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सरफैक्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जितने भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं
अब जैसे मान लीजिए आज हमने चर्चा की, एक बार चर्चा में आया था थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल। हेलो हेलो, यस सर। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल। अब इन्होंने शुक्ला जी ने मेंशन किया था शायद, और शायद आयुषी मैडम ने भी मेंशन किया था। तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब ये होता है स्टेबल फॉर एवर। जो सिस्टम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं वो कभी भी डिकम्पोज, कभी भी ब्रेक नहीं होते। माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। अच्छा, वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब सरफेस टेंशन लेस देन 0 हो जाता है। और सबसे अच्छे फार्मास्यूटिकल्स में जो बेस्ट माइक्रो इमल्शन फॉर्मुलेशंस हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के के हैं, क्योंकि विटामिन डी घुलता नहीं है पानी में, इट इज इनसॉल्युबल। तो उसको जब डिलीवर करते हैं पेशेंट्स को तो माइक्रो इमल्शन बनाते हैं। तो आज जो आपने चर्चाएं की वो सारे सर्फैक्टेंट मैंने डिजाइन किए हैं। जब मार्केट में आप सिरप लेने जाते हो तो वो सारे सिरप्स में जो सॉल्युबलाइजर है, जब इमल्सिफायर से ऊपर की कैटेगरी होती है सॉल्युबलाइजर, वो बहुत हाई स्टेबल होता है। तो मैं आपका एक वेबिनार करवाऊंगा, मैं अपने स्टूडेंट को भेजूंगा, वो मोदी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वो, 30 साल से सर्फैक्टेंट पे काम कर रहे हैं, इज अ वेरी सीनियर पर्सन, और उनका एक मैं वेबिनार आपके लिए कराऊंगा। डू यू वांट इट? मनीषा, डू यू वांट इट? आयुषी, सुकेश जी, डू यू वांट इट? Yes, sir. Yes sir, yes sir. तो एक वेबिनार करते हैं आपके लिए, ओके, ओनली ऑन सर्फैक्टेंट्स। Thank you, sir. HLB क्या होता है, सर्फैक्टेंट कैसे होते हैं, कैसे सेलेक्ट करें सर्फैक्टेंट, कैसे बनते हैं, ये सब आपको करवाएंगे। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय एल्यूमिनाई जी से मिल सकता हूं क्या मैं? पंकज जी है ना? एल्यूमिनाई हैं मनीष जी आपके, या चले गए? सर वो चले गए सर। ओहो, चले गए, माय गॉड, आई एम सो सैड। अच्छा, स्टूडेंट्स में से कोई है जो मेरे से पूछना चाहता है कुछ? बेटा हैंड रेज करना अपना, कोई अगर कोई क्वेरी हो किसी की तो। या कोई फैकल्टी मेरे से कुछ पूछना चाहती है? हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। कोई नहीं है? जी सर, कोई नहीं सर। ठीक है, मुकेश कुमार जी। जी सर। वाणी को विराम देने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक काम करिए, आपके इंस्टीट्यूट में एक देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अजीत प्रताप सिंह, सुना है आपने? अजीत प्रताप सिंह तो सर कोई नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके यहाँ? सर वो केएन मोदी, नो वन। कोई नहीं, आपके मोदी नगर में ही हैं? जी सर। वो कंप्यूटर साइंस के हैं? जी सर। तो मुकेश कुमार जी वो ना YouTube पे लेक्चर्स अपने वीडियो डालते हैं, ठीक है? जी सर। और मुझे उनके वीडियो 2 मिले थे तो बहुत मुझे अच्छे लगे, तो मैंने उनको फेसबुक पे भी डाला था। मनीष जी आपने देखा है क्या वो? जी सर। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया और मुझे वो बहुत अच्छे लगे, और आज का आपके बच्चों का जो ये वीडियो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है मुकेश जी? थैंक यू सर। तो आप एक काम करिए, मेरा एक निवेदन ये है कि आप एक अच्छे तरीके से इसी कार्यक्रम का एक वीडियो बनाइए, ठीक है? अजीत प्रताप सिंह जी का वीडियो देखिएगा और आप वीडियो बनाइए जिसमें आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करिए, और तीनों बच्चे आपके इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके बनाएं वीडियो, और उस वीडियो को यूट्यूब पे लॉन्च करिए। और लेट अस सी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन should start their own NPTEL type of
लेक्चर सीरीज पॉसिबल है कि नहीं है? जी सर। एनपीटीएल में कुछ ज्यादा स्पेशल पढ़ाते हैं, वो आपसे अच्छा पढ़ाते हैं? नो सर। नॉट शर्मा जी, जी सर। जी सर। मेरा निवेदन है, एक तो सारे स्टूडेंट, कितने इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर 225 फार्मेसी में। तो क्यों नहीं आए सुनने के लिए? सर ये इनिशियल के जो 2 वेबिनार हमने किए थे वो सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था, लेकिन फिर सब्जेक्ट टीचर्स का थोड़ा सजेशन था कि थैंक यू वेरी मच सर, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा आज सौभाग्यशाली दिन है कि टॉपिक ऐसा था कि सर आज प्रेजेंट रहे पूरे वेबिनार में, और सर ने जो अपना मार्गदर्शन हमें दिया है, हमारे बच्चों को दिया है, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे। और अभी सर ने जो कहा है कि एक वेबिनार एक्सक्लूसिवली इमल्शन के ऊपर सर ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि अब एग्जामिनेशन में या और आगे जब आपका प्रोफेशनल कैरियर शुरू होगा तो इमल्शन को लेकर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा। हमारे लिए निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सीखा आपके मनीषा शुक्ला जी, आयुषी कितना अच्छा बोलते हैं ये बच्चे, बहुत। और मुझे पक्का पता है बाकी बच्चे भी अच्छा बोलते होंगे। अभी सर जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें और नए स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल ट्राई टू डिलीवर द वेबिनार्स। और बाकी फैकल्टी को भी लाइए आप,